چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ انہیں قتل کرنے کا دوسرا منصوبہ بھی بنایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جن 3 لوگوں کو نامزد کیا وہی مجھے قتل کرانے کی کوشش میں ملوث ہیں۔ ٹویٹر پر جاری ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کو دیکھتے ہوئے اپنی حکومتیں قربان کی۔ عدلیہ کو اعتماد دلاتا ہوں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دیں۔ الیکشن کمیشن کا پیر یا منگل کے روز شیڈیول جاری کرنے کا کبھی امکان ہے۔ الیکشن کمیشن نے ڈی آر اوز اور آر اوز عدلیہ سے نہ لینے اور پنجاب کے انتخابات کے لیے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو مزید خط نہ لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ مشکل معاشی حالات میں ڈوبا ملک ہمیں ملا ہو۔ ملک جب مسائل میں ڈوب جاتا ہے تب ہی نواز شریف اور شہباز شریف کو آنا پڑتا ہے۔ ملک میں جاری بدترین معاشی بحران کے دوران چین نے پاکستان کے ساتھ مشکل وقت میں ایک مرتبہ پھر دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے $50 کروڑ دے دیے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ میں لکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا لمیٹڈ سے $1.3 بلین کی فائنانسنگ سہولت میں سے $500 ملین موصول ہو گئے، جس سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاک امریکہ 2 روزہ مذاکرات 6 مارچ سے شروع ہوں گے۔ مذاکرات میں سرحدی سیکورٹی پر بھی گفتگو ہوگی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی انٹر ایجنسی وفد اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا تاکہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا جا سکے۔ امریکہ کے قائم مقام کوارڈینیٹر برائے انسدادی دہشت گردی کرسٹوفر لینڈبرگ وفد کی قیادت کریں گے۔ سیکیورٹی اداروں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 8 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ خفیہ اطلاعات پر لاہور سے 5 اور سرگودا سے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ دہشت گردوں کا تعلق العدم القاعدہ اور ٹی ٹی پی سے ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری جنرل اسد عمر سمیت پارٹی کے اعتراض سے نظر بند رہنماؤں اور کارکنان کو رہا کر دیا گیا۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، سابق صوبائی وزیر مراد راس اور سینیٹر ولید اقبال بھی رہائی پانے والوں میں شامل۔ ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں معمولی کمی ہوئی، جس میں مہنگائی کی شرح 0.30% کم ہوئی، جبکہ ایک ہفتے میں 32 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی شرح 41.07% ریکارڈ کی گئی۔ مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر متوسط طبقہ ہوا، جبکہ 44,000 سے زائد ماہانہ انکم والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرح 42.42% ریکارڈ کی گئی۔ انڈونیشیا کے دارالخلافہ جکارتہ کے گنجان آباد علاقے میں تیل کے گودام میں اچانک آگ بھڑکنے سے 17 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ انڈونیشین ریسکیو حکام کے مطابق 260 سے زائد فائر فائٹرز اور 52 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آگ لگنے کے واقعے میں 2 بچے بھی جاں بحق، جبکہ 50 سے زائد زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رواں سال میں پہلی بار چاند آج شام خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ عرب میڈیا کے مطابق جدہ میں فلکیاتی سوسائٹی کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرہ نے کہا کہ گرینج ٹائم کے مطابق رات 7:43 پر چاند 79.5 ڈگری کے اوپر مکہ مکرمہ کے آسمان پر نظر آئے گا۔ چاند پاکستانی وقت کے مطابق رات 12:43 پر خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ ایسا 2023 کے دوران پہلی اور آخری مرتبہ ہوگا۔
اور پی ایس ایل سیزن 8 میں آج قذافی اسٹیڈیم میں لاہور کی قلندرز اور ملتان کے سلطانز مد مقابل ہوں گے. جیت قلندرز کو پلے آف میں لے جائے گی. شائقین کرکٹ بھی کانٹے دار مقابلے کے لیے پرجوش. پوائنٹس ٹیبل پر لاہور قلندرز 10 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ 8 پوائنٹس کے ساتھ ملتان سلطان دوسری پوزیشن پر براجمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر منہاس. ہیڈلائنز آپ جانی نیوز بلیٹن کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ایک اور انکشاف کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ قتل کرنے کا دوسرا منصوبہ بھی بنایا جا چکا ہے. ٹویٹر پر جاری ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کو دیکھتے ہوئے اپنی حکومت قربان کی. وکلاء نے بتایا کہ 90 دن سے آگے الیکشن جا ہی نہیں سکتا. عدلیہ کو اعتماد دلاتا ہوں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جن 3 لوگوں کو نامزد کیا وہی مجھے قتل کرانے کی کوشش میں ملوث ہیں. جے آئی ٹی رپورٹ میں ہی ملزم نوید کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے وقت 5 نامعلوم افراد عدالت میں موجود تھے. سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. شہباز شریف، ڈرٹی ہیری، رانا ثناء اللہ کے باعث کیس کو کور اپ کرنے کی طاقت ہے. تینوں کو خوف ہے کہ عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے. ان کا کہنا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے. جس وقت فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ کیس عدالت میں گئے دونوں فوری ختم ہو جائیں گے. ملک میں جاری بدترین معاشی بحران کے دوران چین نے ایک مرتبہ پھر دوستی کا حق ادا کر دیا. پاکستان کو مشکل وقت سے نمٹنے کے لیے $50 کروڑ دے دیے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا لمیٹڈ سے $50 کروڑ موصول ہو گئے ہیں. اس سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی. ٹویٹر پر پیغام میں انہوں نے لکھا کہ $1.3 بلین کی فائنانسنگ کے حوالے سے تمام رسمی کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں. چینی بینک نے رول اوور سہولت کی منظوری دے دی ہے. یہ رقم 3 اقساط میں دی جائے گی، جس میں سے پہلی قسط مرکزی بینک کو موصول ہو چکی ہے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک امریکہ 2 روزہ مذاکرات 6 مارچ سے شروع ہوں گے. مذاکرات میں سرحدی سیکورٹی پر بھی گفتگو ہوگی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکہ انٹر ایجنسی کا وفد اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا تاکہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا جا سکے. امریکہ کے قائم مقام کوارڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی کرسٹوفر لینڈ برگ وفد کی قیادت کریں گے. ترجمان نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کا موقف ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. کابل کے ساتھ اسلام آباد کے تعلقات اسی لیے خراب ہوئے ہیں کہ طالبان حکومت دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کر رہی. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک امریکہ 2 روزہ مذاکرات 6 مارچ سے شروع ہوں گے. مذاکرات میں سرحدی سیکورٹی پر بھی گفتگو ہوگی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی انٹر ایجنسی کا وفد اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا تاکہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا جا سکے. امریکہ کے قائم مقام کوارڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی کرسٹوفر لینڈ برگ وفد کی قیادت کریں گے. ترجمان نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کا موقف ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. کابل کے ساتھ اسلام آباد کے تعلقات اس لیے خراب ہوئے ہیں کہ طالبان حکومت دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کر رہی. خبر کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. یہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری جنرل اسد عمر سمیت 83 نظر بند رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کر دیا گیا ہے. سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر مراد راس اور سینیٹر ولید اقبال بھی رہائی پانے والوں میں شامل ہے.
अदालती हुक्म के बाद शाह महमूद कुरैशी को अटक डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा किया गया। पीटीआई कारकुनों ने उन पर फूल की पत्तियां निछावर की। जेल से रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तमाम असीरान को मुबारकबाद देता हूं, किसी ने घुटने नहीं टेके। गिरफ्तारियों देने के बाद का खौफ जो है वो बुत टूट चुका है। असद उमर को राजनपुर जेल से रिहा किया गया। पीटीआई रहनुमा ओन अब्बास बप्पी समेत कारकुनों की बड़ी तादाद उनके इस्तकबाल के लिए जेल के बाहर मौजूद थी। कारकुनों ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान के हक में नारेबाजी भी की। इस मौका पर असद उमर ने कहा कि जेल जाने पर फख्र है, बंद कमरों में होने वाले फैसले खत्म होने जा रहे हैं। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा की रिहाई के मौका पर जेल के बाहर भगकर के अवाम का हुजूम उमड़ आया और पुरजोश इस्तकबाल किया गया। मजीद जानती हैं इस रिपोर्ट में। स्पेशल कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई, जिसमें सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी समेत 15 मुल्जिमान पेश हुए। जज बख्त फखर बहजाद के रुखसत होने के सबब ड्यूटी जज ने केस पर समाअत की। अदालत ने मुल्जिम औरंगजेब भट्ट की बीमारी की बुनियाद पर एक दिन की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। आपको एक बार फिर बताएं कि स्पेशल कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई, जिसमें सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी समेत 15 मुल्जिमान पेश हुए। जज बख्त फखर बहजाद के रुखसत होने पर सब ड्यूटी जज ने केस पर समाअत की। अदालत ने मुल्जिम औरंगजेब भट्ट की बीमारी की बुनियाद पर एक दिन की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि इलेक्शन से भागने की कोशिश की गई तो नजरिया जरूरत जन्म पाएगा। इलेक्शन में ही मुल्क की बका है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सदर ने तो इंतखाबात की 30 अप्रैल की तारीख दे दी, लेकिन पीडीएम की मुशावरत का फैसला अभी सामने नहीं आया। देखना यह है कि अब 30 अप्रैल को इलेक्शन होते हैं या अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। गरीब हाजियों के लिए भी खजाना खाली है, अब डॉलर वाले हज कर सकेंगे। चीन ने मुश्किल के वक्त में पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा किया है, फिर भी हुक्मरान साम्राज्य के गुलाम बने हुए हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि इलेक्शन से भागने की कोशिश की गई तो नजरिया जरूरत जन्म पाएगा। इलेक्शन में ही मुल्क की बका है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सदर ने तो इंतखाबात की 30 अप्रैल की तारीख दे दी, लेकिन पीडीएम की मुशावरत का फैसला अभी सामने नहीं आया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ की नाहरी के फैसले पर फुल कोर्ट नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो अपील का हक नहीं दिया गया। अदलिया का एहतराम है, लेकिन चंद मखसूस जजेस से नून लीग के खिलाफ पीटीआई की हिमायत में फैसले आ रहे हैं। इमरान खान ने असम्बलियां इसलिए तोड़ी ताकि निजाम गिर जाए। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां नेक नीयती के साथ नहीं तोड़ी। उन्होंने कहा कि कोई इलेक्शन से फरार हासिल नहीं कर रहा। क्या ऐसे इंतखाबात कराना चाहते हैं जिससे मजीद तनाज़ात पैदा हों? आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले पर फुल कोर्ट नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो अपील का हक नहीं दिया गया। अदलिया का एहतराम है, लेकिन चंद मखसूस जजेस से नून लीग के खिलाफ पीटीआई की हिमायत में फैसले आ रहे हैं। इमरान खान ने असम्बलियां इसलिए तोड़ी ताकि निजाम गिर जाए। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां नेक नीयती के साथ नहीं तोड़ी। उन्होंने कहा कि कोई इलेक्शन से फरार हासिल नहीं कर रहा। क्या ऐसे इंतखाबात कराना चाहते हैं जिससे मजीद तनाज़ात पैदा हों? पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि इमरान खान आज भी कुछ लोगों का लाडला है। फरिश्ते नहीं, जिन्नात हैं जिनके असरात आज भी इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान अदालतों के कंट्रोल से बाहर है। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमला अदालतों और जजों पर हमला है। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में इन्हें क्यों राय दी जा रही है। हुकूमत इमरान खान को फौरी गिरफ्तार करे। उनका कहना था कि पीडीएम का हदफ इमरान खान की सियासत का जनाजा निकालना है। सिक्योरिटी इदारों ने पंजाब में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। खुद के इतलात पर लाहौर से 500 और सरगोदा से 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान सीटीडी का मजीद कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, असलहा और
IED बरामद हुआ है। दहशत गर्दों का ताल्लुक अलकायदा और TTP से है। हुक्काम का कहना है कि दहशत गर्दों की गिरफ्तारी 33 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश के दौरान हुई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गुजरांवाला में दौरान डकैती खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाने वाले 3 मुल्जिमान मुवज्जिना पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक हो गए। पुलिस ने निशान आमिर और साजिद नामी मुल्जिमान को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था। लदेवाला वराइच पुलिस मुल्जिमान को बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि रास्ते में साथियों ने फायरिंग करके मुल्जिमान को पुलिस हिरासत से छुड़वा लिया। मुल्जिमान और इनके साथियों का हदपोकी के करीब पुलिस से आमना सामना हुआ। पुलिस ने बताया कि तीनों मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुल्जिमान ने थाना औरब, ततले आली और लुधियावाला वराइच में डकैती की वारदातों के दौरान खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया था। औरब में दौरान डकैती मां और बेटी के साथ इज्तिमाई ज्यादती की थी, जिसका मुकदमा दर्ज करवाने पर मुल्जिमान ने दोबारा मुतासरा लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। शौकत खानम के फंड्स में बेज़ाब्तियों के इल्जाम का मामला। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में इमरान खान के वकील ने इल्तवा मांग लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए तारीख के दे रहे हैं मगर केस में ज्यादा तखीर नहीं होनी चाहिए। एडिशनल सेशन जज उम्मीद अली बलोच ने समाअत की। PTI चेयरमैन इमरान खान की जानिब से वकील आबिद फारूक अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत के रूबरू कहा कि मुनासिब तारीख दे दी जाए, हम जरा के लिए तैयार हैं। वकील का यह भी कहना था कि जेल भरो तहरीक में असद उमर और दीगर की गिरफ्तारी की वजह से अपने मौकल से राब्ता नहीं हो सका। केस की समाअत 8 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। आपको एक बार फिर बताएं कि शौकत खानम के फंड्स में बेज़ाब्तगियों के इल्जाम का मामला सामने आया है। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में इमरान खान के वकील ने इल्तवा मांग लिया है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तारीख दे रही है कि मगर केस में ज्यादा तखीर नहीं होनी चाहिए। एडिशनल सेशन जज उम्मीद अली बलोच ने समाअत की। PTI चेयरमैन इमरान खान की जानिब से वकील आबिद फारूक अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत के रूबरू कहा कि मुनासिब तारीख दी जाए, हम जरा के लिए तैयार हैं। वकील का यह भी कहना था कि जेल भरो तहरीक में असद उमर और दीगर की गिरफ्तारी की वजह से अपने मौकल से राब्ता नहीं हो सका। यहां वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गवर्नर हाउस पेशावर में निगरान सूबाई वजीर बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह काका खेल की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने उनसे हलफ लिया। निगरान वजीर आला मोहम्मद आजम खान भी तकरीब में शरीक थे। गवर्नर KPK बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह काका खेल को सूबाई वजीर का हलफ उठाने पर मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब में निगरान सूबाई वज़रा शफीउल्लाह, फजल इलाही, मंसूर आफरीदी, अब्दुल हलीम कसूरिया, मोहम्मद अली शाह, जस्टिस इरशाद कैसर, सामल नजीर, शाहिद खतक, हामिद शाह, इंतजामी महकमों के सरबराहान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ट्रांस पेशावर बस के सुपर एक्सप्रेस रूट के औकात में इजाफा कर दिया गया है। ट्रांस बस कल से सदर बाजार स्टेशन पर भी रुकेगी। तर्जमान सदफ कामिल के मुताबिक मुसाफिरों की तादाद के पेश नजर बसों का दरमियानी वक्फा भी 10 मिनट से कम करके 6 मिनट कर दिया गया है। रूट का आगाज चमकनी से सुबह 7:30 बजे पहली बस निकल से होगा, जबकि आखिरी बस शाम 5:30 पर रवाना होगी। माल ऑफ हयाताबाद से पहली बस सुबह 8:10 पर निकलेगी और आखिरी बस शाम 6:10 पर रवाना होगी। इस रूट में चमकनी, सरदार गढ़ी, सदर बाजार, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर और माल ऑफ हयाताबाद के स्टेशन शामिल हैं। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने जिले तरक्याती मंसूबों का दौरा किया है। उन्होंने नालालई सिवा पुल की चौड़ाई और कचहरी चौक ग्वाल मंडी के मकाम पर नालालई का दौरा किया। उनका कहना था कि रावलपिंडी शहर के लिए लई एक्सप्रेस वे निहायत अहमियत का हामिल है। इससे न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी, बल्कि नाले में तुग़यानी और सैलाब का खतरा भी टल जाएगा। 2017 से मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ज़ेरे इल्तवा पड़ने पर इस मंसूबे की लागत 17 बिलियन से 60 बिलियन हो गई है। RDA लई एक्सप्रेस वे में दरपेश मसाइल को फौरी दूर करे, क्योंकि इसमें मजीद ताख़ीर मुमकिन नहीं। सांगा मांगा के नवाही इलाके गवर्नमेंट हाई स्कूल बुद्दोकी में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। हेडमास्टर अजीम नेमत ने स्कूल कौंसल मेंबरान राव खालिद, सरदार मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद सदीक और अल्लाह भट्टी के साथ पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया।
उन्होंने मुहिम को कामयाब बनाने वाले असातिज़े किराम राना मोहम्मद साजिद अली, शाहिद महमूद, मोहम्मद अशरफ डोगर, सनाउल्लाह भट्टी, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद अयूब खान के भरपूर किरदार को सराहा। तलबा असातिज़ा ने मुहिम में भरपूर शिरकत की और पौधे लगाए। पत्तोकी के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निजाम तबाह हो गया। गटर उबलने की वजह से इलाका तालाब बना हुआ है, जिसकी वजह से राहगीरों, नमाजियों और बच्चों को दुश्वारी का सामना है। आपको एक बार फिर बताएं कि पत्तोकी के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निजाम तबाह हो गया है। गटर उबलने की वजह से इलाका तालाब बना हुआ है, जिसकी वजह से राहगीरों, नमाजियों और बच्चों को दुश्वारी का सामना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पत्तोकी में हमारे नुमाइंदे चौधरी नवाज। जी नवाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पत्तोकी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से फूलों के शहर पत्तोकी के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के गंदे पानी से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। पत्तोकी में सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। नमाजियों और बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना है। गंदे पानी से तहफ़्फ़ुज़ फैलने लगा, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए मजीद इनसे जानते हैं। जनाब वाला साडा निज़ाम बहुत खराब हो गया, जिंदी वजह तो असी नमाज पढ़ने वास्ते भी नहीं जा सकते। लंघना टपना, पैदल गुजरना ते मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं चलते। बिल्कुल सड़क बंद हुई पई है। पानी पानी सड़क के उत्ते 2-2 फुट पानी चढ़िया हुआ ते जिंदे वास्ते सीवरेज का निज़ाम बहुत खराब हो गया। नमाज पढ़ने वास्ते कपड़े खराब हो जाते लंघन टप्पन लग्या। ते तुहाडी मेहरबानी है, हुकूमत के सामने साडी अपील है, मेहरबानी करो तो साडे वास्ते कोई हल करो इनदा। जी, शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ इhtजाज करते हुए आला हकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया है। जी, टांग सिटी में टीएमओ की नाकिस कारकर्दगी के बायस बाजारों और गलियों में गंदगी, कूड़े के ढेरों से ताफुन फैलने लगा। तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के साथ भी कूड़े के ढेर लगे हैं। आदम खान कुंडी हमें तफसीलात से आगाह करे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीएमओ के ऑफिस के करीब। यहाँ पर टीएमए की जो तादाद है वो सैकड़ों तादाद में है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले यहाँ पर फेस रीडिंग की मशीन आई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं लगी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सैकड़ों जो मुलाजमीन हैं टीएमए के, वो गोश्त हैं। वो तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन वो अपने महकमे में नहीं आते, यहाँ काम नहीं करते हैं। जिस तरह आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा करकट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मच्छरों का बहुतात है, जिसकी वजह से मलेरिया फैल रहा है। यहाँ पर ताफन फैल रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। साथ ये इलाका मकीन है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है परेशान है इस चीज़ से। तो ये टीएमओ टांकी जो है नाकिस कारकर्दगी है कि उसके अपने दफ्तर के साथ बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट फैला हुआ है। इस तरह मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप बाजार डीसी लाहौर राफिया हैदर ने अपने ऑफिस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जिला लाहौर में 5 लाख पौधे मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। कैंप्स लगाकर आवाम में 5 लाख मकामी फल और सायादार पौधे तकसीम होंगे। डीसी लाहौर ने मुफ्त पौधे तकसीम करने के कैंप्स का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि डीसी लाहौर दफ्तर के बाहर से मुफ्त पौधे हासिल किए जा सकते हैं। जामन, अनार, बेरी, लुगाट समेत मकामी फल और सायादार पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। मकामी पौधे हमारे माहौल से मुताबिकत रखने की वजह से जल्दी नशोनुमा पाते हैं। डीसी लाहौर का मजीद कहना था कि आवाम से गुजारिश है कि कैंप्स में आकर मुफ्त पौधे हासिल करें। लाहौर में महकमा जंगलात और पीएचसी हुदूद में अलग अलग हदफ मुकर्रर किए गए हैं। इस दफा 3.25 लाख से जायद पौधे लगाए जाएंगे। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल रोकने के लिए डीआईजी ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर ने तमाम एसएचओज को क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने दर्जनों मुल्जिमान गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए मालियत की पतंगे, केमिकल डोर और खाम माल बरामद कर लिया। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अफजाल अहमद कोसर ने लाहौर के तमाम थाने के जो एसएचओ थे उनको टास्क दे दिया है कि शहर लाहौर में किसी भी जगह पतंगबाजी ना हो। और देखा जाए तो जिस तरह से गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, मुल्तान, दीगर शहरों में बसंतबाजी के बाद लाहौर में मंचलों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि बसंत जो है वो मनाई जाएगी, जश्न बहारा के तौर पर मनाई जाएगी। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से दूसरे शहरों में बसंत हुई है, लाहौर में भी इसी तरह की तैयारियां जो है वो मंचल नौजवान कर रहे हैं। तो उसी पर
लाहौर पुलिस भी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए बड़ी मुतहरिक है। करोड़ों रुपए की डोर गुडी जो है वो कब्जा में ले ली गई है और दर्जनों मुलजमान को भी गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाया गया है। बाकायदा तौर पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत के मुताबिक सीसीपीओ लाहौर को कहा गया है कि लाहौर में कहीं भी पतंगबाजी अगर हुई तो वहां का मुतलका एसएचओ जिम्मेदार होगा। उसी पर डीएजी ऑपरेशन ने भी जो है वो पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में तमाम एसएचओ को जो है वो तलब किया और बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि एसएचओ जो है वो अपने अपने इलाका में बाकायदा तौर पर जो ऊंची बलाई मंजिलें छतें हैं वहां पर दूरबीन का इस्तेमाल करें और मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा तौर पर उनकी तस्वीरें भी बनाई जाएंगी। तो इसी पर अगर देखा जाए तो पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां भी जारी हैं। वसीम यहाँ पर ये बताइएगा कि लाहौर के अभी तक किस किस इलाके में ऑपरेशन जो है वो किया गया है? देखें, एसएचओ रावी रोड उस्मान ने जो है वो एक बड़ी तादाद में पतंगबाजी का सामान कब्जा में लिया है। मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इसी तरह से नारी अड्डा, बदामी बाग, मिस्री शाह, शाद बाग, इसके अलावा शादरा टाउन, शफीकाबाद, ये सिटी डिवीजन के वो थाने हैं जो कि बड़े फौज थाने हैं। यहाँ पर पतंगबाजी होती थी, लेकिन पुलिस ने बड़ा अच्छा जो है वो इनके खिलाफ क्राइटेरिया तैयार किया और बाकायदा तौर पर मैं समझता हूँ कि जिस तरह से एसएचओ रावी रोड ने अपनी टीम के हमरा रेड करके डोर गुडी पकड़ी और मुलजमान को भी गिरफ्तार किया, और दूसरे जिस तरह से 6 डिवीजन है लाहौर की, कैंट डिवीजन है, इकबाल टाउन है, मॉडल टाउन है, सदर है, सिटी है, इस तरह की जो दूसरी डिवीजन है वहां पर भी एसएचओ जो है वो पतंगबाजी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और मुलजमान की गिरफ्तारियां अमल में ला रहे हैं। लेकिन डीएजी ऑपरेशन इस दफा बड़े खासे गुस्से में नजर आए कि एसएचओ के साथ बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि दिन हो या रात हो पतंगबाजों की बाकायदा तौर पर फरिश्तें तैयार कर ली गई हैं जो कि इससे पहले जिनके ऊपर मुकदमात थे, जो पतंग फरोशी करते थे, पतंगबाजी करते थे, उनको भी गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। शादबाग पुलिस ने टीम तश्कील दी है, एक बड़ी जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार करने में महारत रखती है। इसके अलावा दीगर थानों के एसएचओ ने जो है वो टीमें तैयार की हैं। अभी तक लाखों रुपए का जिस तरह से मैंने बताया कि माल जो है वो कब्जा पुलिस में ले लिया गया है, जो 1000 से ज्यादा चरखियां हैं, इसके अलावा पतंगे, गुड्डे और केमिकल के साथ साथ खाम माल है। लाहौर में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि मोची गेट हो गया, इसके अलावा रंग महल हो गया, अकबरी गेट हो गया, दीगर थानों के जो हदूद है ऐसी जो कि जहाँ पर बरीक गलियां हैं वहां पर गाड़ी का जाना मुश्किल है, लेकिन वहां पर लोग पतंगबाजी का सामान खरीदते हैं और बैग के अंदर डाल के जो है वो उसके बाद वहां पर जाके शौक करते हैं। खासकर ऑनलाइन पतंगे और चरखियां फरोख्त करने वाले भी इस वक्त जो है वो सर उठाए बैठे थे, लेकिन पुलिस ने जो है वो इनका सर कुचल दिया है। और कहा जा रहा है हमारे जराये के मुताबिक कि मंचलों ने भी जो है वो पूरी तरह से बसंत मनाने की तैयारियां कर ली गई। वसीम साबिर, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। प्रीमियर ग्रामर स्कूल हरबंसपुरा में सालाना तकरीब तकसीम नमात का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों, वालिदैन और असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी जफर इकबाल और फैज रसूल थे। मजीद तफसीलात जानते हैं राना जाहिद की इस रिपोर्ट में। प्रीमियर ग्रामर स्कूल हरबंसपुरा में 5वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों, वालिदैन और असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब जफर इकबाल और फैज रसूल थे। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल तसद्दुक हुसैन ने खिताब करते हुए स्कूल की सालाना रिपोर्ट पेश की और तकरीब में शिरकत करने पर वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल तसद्दुक हुसैन ने गुज़िश्ता साल के दौरान स्कूल की कामयाबियों पर रोशनी डाली। इन्होंने तालीम की अहमियत पर जोर दिया और वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को तालीमी सरगर्मियों में मदद करते रहें। प्रिंसिपल की तकरीर के बाद अवार्ड्स की तकरीब का आगाज हुआ और तलबा को इनकी तालीमी कामयाबियों और गैर निसाबी सरगर्मियों और खेल कूद के लिए इनामात तकसीम किए गए। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को मेडल, इस्नात और इनामात से भी नवाजा गया। वालिदैन ने नुमाइंदा कोहिल नूर से बात करते हुए अपने बच्चों को तालीमी अवार्ड हासिल करते हुए अपनी खुशी और मुसरत का इजहार किया। इन्होंने तलबा की तालीम के मेहनत और लगन के लिए स्कूल के असातिज़ा की भी तारीफ की। आज बेसिकली बच्चों की अप्रिसिएशन का दिन है और पूरा साल उन्होंने मेहनत की है। आज उनके मेहनत का सिला मिलना उन्हें, और इतना पेरेंट माशाल्लाह गैदरिंग में देख के हैरान हूँ कि आज हफ्ते का दिन है और वेडिंग सीजन भी है, उसके बावजूद पेरेंट्स की तादाद में अपने बच्चों की खातिर आए, विच इज़ वेरी गुड थिंग कि बच्चों के लिए टाइम निकालना माँ बाप की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। और आज बच्चों ने माशाल्लाह मेहनत की है और उसके अवार्ड लिए हैं और माशाल्लाह आज परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी कैटेगरी है जिसके अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ पिक्चर्स ले रहे हैं, स्टेज के ऊपर आके अवार्ड रिसीव कर रहे हैं।
और ये साल बाद मेहनत बच्चे का सीना और भूल जाता है, ठीक है, और अगले साल के लिए मोटिवेशन हो जाता है। एनुअल डे के हवाले से यही कहूँगी कि बड़ा अच्छा लग रहा है आके, और मेरे तो माशाल्लाह से बच्चे बड़े अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और यही है कि बच्चों का सबसे जो आजकल जो प्रॉब्लम है वो उर्दू में है, तो स्कूल्स को उर्दू पे फोकस करना चाहिए। सब बच्चों की उर्दू काफ़ी कमज़ोर है, मुझे बस ये इशू होता है थोड़ा सा, बाकी तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में इसमें होना जी इक्वल होना चाहिए। और उर्दू हमारी ज़ाहिर है कि एक नेशनल लैंग्वेज है, तो उस पर ज़रा ज़्यादा फोकस जो कि अब कम हो गया है। स्कूल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि इंग्लिश को, तो वो मेरा एक कंसर्न है। बाकी माशाल्लाह से Assalamu alaikum. Today we have gathered here for the annual prize distribution ceremony, and I'm here with my daughter, and last year was my first year when I registered my daughter, and I'm very much happy. And the school is very supportive, always there, very cooperative. The staff, the admin, principal, everyone is just working all the way. So I'm really happy being here with my child, and inshallah maybe I'll bring my other children in this school as well next. अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, और ऐसे फंक्शन हमेशा रखने चाहिए। पेरेंट्स भी काफ़ी इंजॉय करते हैं, बच्चे भी काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा हुसैन है और मैं ग्रेड 9 की स्टूडेंट हूँ। मुझे पीजीएस स्कूल में पढ़ते पढ़ते 5-6 साल तकरीबन हो चुके हैं, और हर बार की डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की तरह इस बार भी बहुत ही कोई एक्सीलेंट किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिल रही है। हर स्कूल में इस तरह की मोटिवेशन के लिए होने चाहिए, और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई स्कूल टू मेक अपॉर्चुनिटीज़, टू गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू अस। और हर स्कूल में मैं चाहती हूँ कि इस तरह का मिले और बच्चे मोटिवेट हो। इन्होंने मजीद कहा कि इस तरह की तकरीबात तलबा को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए जदोजहद करने और इनका एतमाद बढ़ाने में मदद देती हैं। Morning everyone. I am so very happy because I got second position, and I am very happy from my school. अस्सलामुअलैकुम, मैं बड़े होते पुलिस बनूंगा। साथ पर मैं यहाँ अच्छे से पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट आता हूँ, हर टेस्ट पर पास आता हूँ। साथ में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ के स्पोर्ट्स वाले बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मजा आता है। I got my result and happy. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फसीउल हक है और मैं ग्रेड 4 में पढ़ता हूँ। यहाँ पे क्या कहते हैं, बोर्ड से फंक्शन होते हैं, मतलब कि बोर्ड से मतलब कि मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं, और हमें इसको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और आगे जाके हमारे फ्यूचर में हेल्प भी करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद तंजील और मैं ग्रेड 8 से हूँ। मैं यहाँ पे 1 क्लास से पढ़ा हूँ। यहाँ के इंतजाम बहुत अच्छे हैं, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, और ऐसे इवेंट्स यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से लोग इंजॉय करते हैं, और मैं यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तकरीब में स्कूल के सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी और खातून अव्वल बेगम समीना आरिफ अलवी मारूफ शायर मरहूम अमजद इस्लाम अमजद के अहल खाना से ताज़ियत के लिए उनके घर पहुंचे। सदर मुमलिकत और खातून अव्वल ने मरहूम अमजद इस्लाम अमजद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के लिए फातिहा ख़्वानी की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी का कहना था कि मरहूम अमजद इस्लाम अमजद उर्दू अदब के अजीम शायर और मुसन्निफ थे। पाकिस्तान को इन जैसे लोगों पर फख्र है, उनका नुकसान कौम का नुकसान है। सदर मुमलिकत ने पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की और इंतकाल पर गहरे दुख और रंजो गम का इजहार किया। शाम और तुर्किया में आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़ले से मुतासरा शामी बच्चे नबील का पुर्तगाली फुटबॉलर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मुलाकात का ख्वाब पूरा हो गया। शामी बच्चा सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की शेख की दावत पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मुलाकात करने के लिए वालदा के हमरा रियाज पहुंचा। नबील ने नसर फुटबॉल क्लब में क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मुलाकात की और उन्हें अपने मोहब्बत भरे जज्बात से पुकारा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी नबील का भी भरपूर अंदाज में खुश आमदीद कहा और नेक जज्बात और ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप में 200 से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ समेत रजाकारों ने शिरकत की। फ्री मेडिकल कैंप में 1000 से ज्यादा मरीजों को चेकअप समेत अद्वियात और दीगर जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। पाकिस्तानी सफीर अमीर खुर्रम राठौर ने भी मेडिकल कैंप का दौरा किया। पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप के सदर डॉक्टर असद रूमी का कहना था कि 15 सालों से सालाना 2 बार फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाता है ताकि दयार गैर में मुकीम हम वतनों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके।
جی یہ پاکستان ڈاکٹرز گروپ 15 سال سے میڈیکل کیمپ لگا رہا ہے. یہ ہم نے 2008 سے شروع کیا تھا اور نہ صرف میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں, یہاں پہ 5 دن روزانہ یہاں پہ ایمبیسی کلینک بھی ہوتی ہے. اور اس کیمپ میں جو ہم لگا رہے ہیں آج تقریباً 1000 سے زیادہ مریض یہاں پہ آ چکے ہیں اور جن کا مفت علاج کیا جا رہا ہے. ان کو ساری ڈائگنوسٹک سروسز دی جا رہی ہیں, ان کو اس کے ساتھ ساتھ ان کو فری کنسلٹیشنز دی جا رہی ہیں. یہاں پہ 150 سے زیادہ ڈاکٹرز ان کی اسپیشلٹیز موجود ہیں جو مریضوں کو دیکھ کے ان کی ہیلپ کر رہی ہیں. اس کے بعد ان سارے مریضوں کو فالو اپ کے لیے ایمبیسی کلینک بلایا جائے گا, ان کے ریزلٹس دیکھے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریٹمنٹ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.